Very good morning, dear students. I am Dr. Rashmi Dwivedi, Associate Professor in Department of Mechanical Engineering at SISTEC Gandhinagar, Bhopal. We are discussing Unit 4, Friction in Pivot in Collar Bearings and Clutches. In this unit, we have already discussed about various topics like what are pivots bearing, what are collar bearings, what are different types of pivots and collar bearings, and we have already derived expression of frictional torque in case of pivot and collar bearings, and we have already derived expression for power lost in bearings. So in today's lecture we are going to start the topic clutch. In this lecture we will talk about what are clutch, what are the function of clutch, single plate clutch, multi plate clutch, and we will derive the expression of frictional torque in case of a single plate clutch and multi plate clutch. So let's start with the basic definition of clutch. Clutch, basically what is clutch? Clutch basically is a mechanical device which is used to connect or disconnect the driving and driven members. मीन्स क्लच एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो ड्राइवर एंड ड्रिवन मेंबर्स को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करती है. ये कहाँ पर यूज होती है? ये पावर ट्रांसमिशन के टाइम पे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं वहां पे हम यूज करते हैं गाड़ियों में. देखिए इस डायग्राम में क्लियर हो रहा है, ये आपको इंजन दिख रहा है और ये गियर बॉक्स दिख रहा है. गियर बॉक्स जिस शाफ्ट से कनेक्टेड होती है उसको हम ट्रांसमिशन शाफ्ट कहते हैं या उसको हम क्लच शाफ्ट भी कहते हैं. और इंजन जिस शाफ्ट से कनेक्ट होती है दैट इज क्रैंक शाफ्ट. एंड इंजन शाफ्ट से आपकी फ्लाईव्हील भी कनेक्टेड होती है. तो जब आपका इंजन रन करता है तो फ्लाईव्हील भी हमारी रन करती है. जब फ्लाईव्हील रन करेगी तो इससे ही हमारी क्लच प्लेट कनेक्ट होती है तो वो भी रन करती है. तो जब वो रन करेगी तो अगर वो इंगेजमेंट की कंडीशन में होगी तो वो सेम पावर किस में ट्रांसमिट करेगी? गियर बॉक्स यानी कि ट्रांसमिशन शाफ्ट में, और ट्रांसमिशन शाफ्ट के थ्रू वो रियर व्हील्स में आएगी. और अगर वो डिसएंगेजमेंट की कंडीशन में होगी तो हमारा पावर ट्रांसमिशन जो होगा वो रियर व्हील्स में नहीं होगा. तो बेसिकली क्लच एक ऐसी डिवाइस है जो ड्राइवर शाफ्ट को ड्रिवन शाफ्ट से जोड़ता है. Now, what are the basic parts of clutch? Clutch have basically 4 parts: flywheel, friction disc, pressure plate, spring and release lever. Flywheel, as we know that flywheel is mounted on the crankshaft, keeps on running as long as the entire engine keeps running. That means जब आपका इंजन रन होता है तो फ्लाईव्हील भी आपकी क्या होती है? रन करती है. जो फ्लाईव्हील होती है उसके एक साइड में आपके फ्रिक्शन सरफेस अटैच्ड होती है. अब सेकंड पार्ट है फ्रिक्शन डिस्क. सिंगल और मल्टीपल डिस्क लाइन विद फ्रिक्शन मटेरियल हैविंग हाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर माउंटेड ऑन द ड्रिवन शाफ्ट. ड्रिवन शाफ्ट दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं क्लच शाफ्ट की. तो क्लच शाफ्ट से जो हमारी सिंगल और मल्टीपल डिस्क अटैच होती हैं विद फ्रिक्शन मटेरियल्स उनको हम बोलते हैं फ्रिक्शन डिस्क. थर्ड आता है प्रेशर प्लेट. Another friction disc is bolted to the pressure plate. The pressure plate is mounted on the splined hub. उसमें एक splined होता है. Later we will see in the diagram कि splined hub में आपकी pressure plate mounted होती है. Spring and release levers. Spring and release levers क्या रोल करते हैं? Basically springs are used. Which type springs are used in clutches? Diaphragm springs which moves friction disc back and forth. जो कि friction disc that means clutch plate की हम बात कर रहे हैं, clutch plate को आगे और पीछे मूव कराती है. The spring is retracted with the help of levers. मतलब वो लीवर के हेल्प से स्प्रिंग जो होती है आपकी मूव करती है और उससे ही हमारी क्लच प्लेट मूव करती है. Now what are the basic function of the clutch? The first function, as we have already discussed, that to engage and disengage the driver and driven shaft. This is the first function of clutch. To disconnect or connect the engine or prime mover from the rest of the transmission system without stopping the engine or prime mover.
एज इंजन स्टार्ट, अगर इंजन स्टार्ट हो गया तो इंजन से आपकी क्रैंकशाफ्ट कनेक्टेड होती है, क्रैंकशाफ्ट से आपकी फ्लाईव्हील कनेक्टेड होती है। तो जब आपका इंजन स्टार्ट है तो इंजन को बिना स्टॉप किए हम जो प्राइम मूवर है, इंजन है, उसको बाकी के ट्रांसमिशन सिस्टम से इंगेज और डिसंगेज किसकी हेल्प से करते हैं? क्लच की हेल्प से। और जब हम क्लच की हेल्प से उसको इंगेज और डिसंगेज करते हैं उस टाइम पे हम इंजन को स्टॉप नहीं करते, हमारा इंजन रनिंग कंडीशन में ही होता है। To disconnect the engine from the rest of the transmission system for engaging the first gear to start the vehicle from the rest। जब आपका व्हीकल रेस्ट कंडीशन में होता है तो हमें व्हीकल को स्टार्ट करना होता है जब, और फर्स्ट गियर में लेना होता है जब व्हीकल को, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हमें उस टाइम पे क्लच को या ट्रांसमिशन शाफ्ट को, आपकी जो पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट है उसको मुझे डिस्कनेक्ट करना होता है इंजन शाफ्ट से। तो उसको मुझे डिस्कनेक्ट करने के लिए मैं अगेन क्या करूंगी, क्लच पैडल को प्रेस करूंगी, और क्लच पैडल को जैसे ही अपन प्रेस करेंगे क्लच प्लेट जो होगा वो फ्लाईव्हील से डिसंगेज हो जाएगा, दैट मीन्स डिस्कनेक्ट हो जाएगा इंजन से। दैट मीन्स जो हमारा बाकी का ट्रांसमिशन शाफ्ट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है टू डिस्कनेक्ट द इंजन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर चेंजिंग द गियर रेशियो व्हाइल व्हीकल इज मूविंग। सिमिलरली जब हमारा व्हीकल रेस्ट पे है तो हम उसको फर्स्ट गियर में लेने के लिए भी हमें डिसंगेज करना होता है। और वी नो दैट फॉर चेंजिंग द स्पीड रेशियो, for changing the gear ratio, we always require to disconnect the clutch shaft or transmission shaft from the engine shaft। तो हमें इंजन शाफ्ट से डिस्कनेक्ट करने के लिए हमको ऑलवेज क्लच प्लेट को डिसंगेज करना पड़ता है। तो डिसंगेज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, क्लच का यूज करते हैं। Fifth is to provide the drive without jerk at the time of the starting the vehicle from the rest position or at the time of changing the gear ratio। जब हम व्हीकल को रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करते हैं या हम स्पीड को चेंज करते हैं उस टाइम पे हम क्लच का यूज करते हैं। क्यों क्लच का यूज करते हैं? क्योंकि अगर हमारा इंजन रन करता है और क्लच प्लेट के थ्रू हमारी ट्रांसमिशन शाफ्ट से कनेक्टेड है तो उस टाइम पे हम अगर इंजन को स्टार्ट करेंगे तो अगर हमारी क्लच प्लेट कनेक्टेड मतलब इंगेजमेंट की कंडीशन में है इंजन शाफ्ट और ट्रांसमिशन शाफ्ट से, तो अगर हम उसी कंडीशन में गाड़ी को फर्स्ट गियर में लेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो हमें जर्क फील होगा, जब स्पीड रेशियो चेंज करेंगे तो भी हमें जर्क फील होगा। तो हम क्लच की हेल्प से उसको विदाउट जर्क ड्राइव करते हैं। Sixth is to facilitate the gear shifting easily without noise and damage, similarly to the fifth point। And seventh is the function of the clutch is to allow the engine to take load gradually without jerk। That means कि अगर हमें लोड भी लेना है तो हम क्लच की हेल्प से विदाउट जर्क वो लोड बियर कर सकते हैं। Now we will talk about basically in this part we will talk about basically 4 types of clutches। First is the single plate clutch, second is the multi-plate clutch, third is the cone clutch, and fourth is the centrifugal clutch। We will discuss all of them one by one। Firstly, what is the working principle of clutch? अगर हम क्लच की बात करते हैं तो क्लच बेसिकली पॉजिटिव क्लच भी होते हैं और फ्रिक्शन सरफेस क्लच भी होते हैं। पॉजिटिव क्लच क्या होते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं थोड़े सा आपको डिस्कस कर देती हूँ कि पॉजिटिव क्लच लाइक पॉजिटिव उसमें क्या होते हैं, टीथ बने होते हैं। पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं जॉज बने होते हैं, तो प्रॉपरली जो एंगेजमेंट होता है वो टीथ के फॉर्म में होता है, ठीक है। उसमें बेवल शेप के भी होते हैं, स्क्वायर शेप के भी होते हैं, तो इसलिए हम उनको पॉजिटिव क्लच बोलते हैं। मतलब हमारा जो उसमें ट्रांसमिशन होता है वो एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है प्रॉपर फिक्सिंग ऑफ द टीथ। But these clutches are the friction surface clutches। That means यहाँ पे हम अगर फ्रिक्शनल टॉर्क की बात कर रहे हैं, टॉर्क ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ टॉर्क ट्रांसमिशन की बात फ्रिक्शन सरफेस के थ्रू करेंगे। दैट मीन्स वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, उस फ्रिक्शन के थ्रू हमारा टॉर्क ट्रांसमिट होगा। तो फ्रिक्शन सरफेस क्लचेस के बारे में हम बात करें, ऑल फोर क्लचेस आर फ्रिक्शन सरफेस क्लचेस। तो इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? द प्रेशर प्लेट इज बोल्टेड टू द फ्लाईव्हील थ्रू क्लच स्प्रिंग्स एंड इज फ्री टू स्लाइड ऑन द क्लच शाफ्ट व्हेन द क्लच पैडल इज ऑपरेटेड। दैट मीन्स जो आपकी प्रेशर प्लेट होती है वो क्लच प्लेट से अटैच्ड होती है, जो कि आपकी
जो आपकी क्लच प्लेट होगी उसमें फ्रीली मूव कर सकती है टू एंड फ्रो। अब उसी के मूवमेंट पे बेस होता है कि आपकी क्लच प्लेट, बेसिकली क्लच क्या काम कर रहा है, क्लच इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट का काम कर रहा है। तो वो इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट का काम कैसे कर रहा है कि जब वो इंजन शाफ्ट से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो डिसएंगेजमेंट की कंडीशन होती है, दैट मीन्स पावर ट्रांसमिशन रियर व्हील में नहीं होता है। और जब वो इंगेज होता है, जब वो इंजन शाफ्ट से इंगेज होता है तो उस कंडीशन में आपकी ये जो पावर होती है, इंजन पावर, वो टोटली किस में ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिशन शाफ्ट, दैट मीन्स रियर व्हील में। अब आपकी क्लच की दो कंडीशंस होती हैं। जब फर्स्ट कंडीशन इफ क्लच इंगेज्ड, सेकेंड कंडीशन इफ क्लच डिसएंगेज्ड। अब क्लच इंगेज और डिसएंगेज में कैसे होती है, देखिए, when the clutch engaged means when you not press clutch pedal। हमेशा ये कंफ्यूजन आता है कि कब इंगेज और डिसएंगेज की, तो जनरली अपने माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि भाई जब क्लच पैडल को प्रेस किया है तो इंगेजमेंट की कंडीशन। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत होता है। क्लच इज इंगेज कंडीशन में जब होगा, दैट मीन्स कि हमने क्लच पैडल को प्रेस नहीं किया है, क्लच पैडल को प्रेस नहीं किया है, तब हमारा प्रॉपर सिस्टम इंगेज कंडीशन में। The clutch plate is gripped between the flywheel and the pressure plate. We have already discussed this point. The friction linings are on the both side of the clutch plate. Clutch plate के दोनों साइड में friction linings होती हैं। The clutch plate revolves the flywheel because of the friction between the flywheel. अब जैसे ही फ्रिक्शन होता है, क्योंकि फ्लाईव्हील से क्लच प्लेट अटैच्ड होगी और एक क्लच प्लेट से प्रेशर प्लेट अटैच्ड होगी, तो जब फ्लाईव्हील रोटेट होगी तो फ्रिक्शन सरफेस की वजह से वो क्लच प्लेट को भी रोटेट करेगी, और क्लच प्लेट के दोनों साइड पे फ्रिक्शन है, इसलिए वही फ्रिक्शन से प्रेशर प्लेट को भी रोटेट करेगी। तो इस तरीके से सिस्टम वर्क करता है। Clutch shaft is connected to the transmission gearbox. Now the engine power is transmitted to the crankshaft and then to the clutch shaft and gearbox. Simply अगर आपकी engagement की पोजीशन है, क्लच हमारा engaged है, तो क्लच engaged है, that means कि इंजन पावर हमारी ट्रांसमिट हो रही है। कैसे? crankshaft and then to clutch shaft and to gearbox. और ये engaged होते क्यों है? स्प्रिंग फोर्स की वजह से, अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए सेकंड पॉइंट है आपका इफ क्लच डिसएंगेज्ड। अगर आपका क्लच डिसएंगेज्ड है व्हेन द क्लच इज डिसएंगेज्ड, अगेन previously we have discussed that if the clutch is engaged position, that means we have not pressed the clutch pedal. But when the clutch is disengaged, when you press the clutch pedal, the pressure plate moves back against the force of the spring and the clutch plate become free between the flywheel and the pressure plate. The flywheel always rotating and crankshaft, then clutch shaft speed reduces slowly and stop rotating. That means अगर आपकी clutch disengage position पे है, disengage मतलब आपने स्प्रिंग क्लच पैडल को प्रेस किया, स्प्रिंग पे फोर्स लगा, स्प्रिंग के फोर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपकी क्लच प्लेट जो होगी, सॉरी प्रेशर प्लेट मूव करेगी, वो आपकी क्लच प्लेट को इंजन शाफ्ट से डिसएंगेज करेगी। दैट मीन्स पावर ट्रांसमिशन धीरे धीरे कम होने लगेगा और धीरे धीरे आपकी जो क्लच शाफ्ट की स्पीड है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी रोटेट होना। अब सिंगल प्लेट क्लच के एडवांटेज क्या क्या है? ये एक्सपेंसिव नहीं है, लिटिल मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है क्योंकि एक ही क्लच प्लेट लगा है, गियर शिफ्टिंग इजियर होती है और सिंगल प्लेट क्लच मोर रिलायबल होता है। आपका ये डायग्राम देख सकते हैं आप। इस डायग्राम में ये जो ऑरेंज वाला सेक्शन है ये आपका प्रेशर प्लेट को शो कर रहा है। ये सेंटर पे जो आपको दिख रहा है, दीज आर द डायफ्रागम स्प्रिंग। बेसिकली दिस होल सेक्शन इज द डायफ्रागम स्प्रिंग. This is clutch plate. These brown shades are showing the friction material, friction lining materials. These are the spring which is used to bear the vibrations and noise. And this is the flywheel. Basically these three are the important parts in single plate clutch or multi-plate clutch also. These are the some bolts, nuts, and these are the spline hub. This is cover plate. Now we have to derive the expression of maximum torque equation in case of a single plate clutch. अब देखिए सिंगल प्लेट क्लच में जो आपकी फ्रिक्शन लाइनिंग है वो कहाँ से कहाँ तक, अगर ये स्प्लाइन है, दिस इज द स्प्लाइन सेक्शन, तो यहाँ से
जो ये सेक्शन होगा दिस सेक्शन ओनली शोज द फ्रिक्शन सरफेस। तो जो आपका टॉर्क ट्रांसमिशन होगा वो इसी फ्रिक्शन सरफेस के बीच में होगा, इन्हीं की वजह से होगा। तो जो फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल्स का एरिया है वो कहां से कहां तक वेरी हो रहा है। अगर हम यहां से सेंटर से यहां तक के डिस्टेंस को R2 लें और यहां से सेंटर से ये आउटर सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को R1 लें, तो R1 माइनस R2 इज द फ्रिक्शनल सरफेस रेडियस। तो हमारा जो फ्रिक्शनल टॉर्क होगा वो हम क्या करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे। इनिशियली हम एक एलिमेंट्री रिंग लेंगे जो कि सपोज यहाँ से कुछ समथिंग स्मॉल r डिस्टेंस पे होगी और जिसकी थिकनेस dr होगी। उस एरिया पे जितना लोड लगेगा, जितना प्रेशर लगेगा, और उस एरिया के लिए पहले हम फ्रिक्शनल टॉर्क निकालेंगे, देन उसको हम इस कंप्लीट एरिया के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें रिक्वायर्ड टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है सिंगल प्लेट, ये ग्रीन ये जो है ये सिंगल प्लेट क्लच प्लेट है। क्लच प्लेट एक साइड प्रेशर प्लेट से अटैच्ड है फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल के थ्रू और एक साइड फ्लाई व्हील से अटैच्ड है, लेकिन क्लच प्लेट के दोनों साइड फ्रिक्शन सरफेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्लच प्लेट दिख रही है ये इस साइड भी इसके फ्रिक्शन सरफेस है और इसके अपोजिट भी फ्रिक्शन सरफेस है। एक साइड ये फ्लाई व्हील से अटैच्ड होगी और एक साथ ये इस प्रेशर प्लेट से अटैच्ड होगी, तो दोनों सरफेस एक्टिव होंगी। अब देखिए तो ये क्लच प्लेट जो है वो मिडिल पे रखी हुई है, इस साइड फ्रिक्शन सरफेस है जो प्रेशर प्लेट से अटैच्ड है और यहाँ पे आपका फ्लाई व्हील है। अब सर्कुलर ये मुझे टॉप से देखने में कैसे दिख रहा है, ऐसा ये R2 है, ये R1 है, बीच में कहीं हमने R रेडियस पे एक एलिमेंट्री रिंग चूज कर ली जिसकी थिकनेस dr है। तो क्लच प्लेट के दोनों साइड पे आपके फ्रिक्शन सरफेस है। अब यहाँ पे देखिए ये फ्रिक्शन सरफेस 1 है, फ्रिक्शन सरफेस 2 है, फ्रिक्शन सरफेस 1 प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट के बीच में, फ्रिक्शन सरफेस 2 फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टर्निंग टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट, मतलब फ्रिक्शनल टॉर्क हम उसे बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक एलिमेंट्री रिंग चूज की है। अब देखिए यहाँ पे हमारा लोड कहाँ लग रहा है। अब अगर आप इसको सर्कुलर देखिए ये वाला सेक्शन, तो लोड कैसे लगेगा, ये एक शाफ्ट स्प्लाइन शाफ्ट मतलब क्लच शाफ्ट से कनेक्टेड होगी, तो लोड कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब एक्सियल लोड लगेगा क्योंकि हमारी शाफ्ट ऐसे रोटेट हो रही है तो एक्सियल डायरेक्शन में लगेगा। तो एक्सियल लोड W लग रहा है, कैपिटल W। P प्रेशर इंटेंसिटी है बिटवीन द फ्रिक्शन सरफेस, आउटर रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस इज small r1 and inner radius of the friction surface is r2. Mu is the coefficient of friction for the friction surface. Now we have to consider a ring of thickness dr at the radius r. You can see from this diagram. So area of the ring will be 2 pi r dr. अगर हम उस रिंग खोल देंगे तो circumference 2 pi r एरिया क्या होगा, 2 pi r into dr as area of the rectangle. एक्सियल लोड कितना होगा रिंग पे, डेल्टा W से हम शो कर रहे हैं क्योंकि हम एलिमेंट्री रिंग की बात कर रहे हैं। तो P इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एरिया। लोड कितना लग रहा है, डेल्टा W, सो लोड इज इक्वल टू होगा P इंटू 2 pi r dr। टेंजेंशियल फ्रिक्शनल टॉर्क कितना होगा, टेंजेंशियल फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू होगी आपकी म्यू इंटू डेल्टा W। डेल्टा W की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, इसको पुट कर देंगे तो टर्निंग टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा, म्यू इंटू P 2 pi r इंटू R इंटू dr, बिकॉज दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स एट एलिमेंट्री रिंग। सो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, टर्निंग टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल टॉर्क फोर्स दैट विल बी इक्वल टू F इंटू R, और F की वैल्यू ये है एंड म्यू की वैल्यू हम R की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू P 2 pi इंटू R स्क्वायर इंटू dr। अब टोटल टॉर्क निकालना है हमें, टोटल टॉर्क विल बी T इज इक्वल टू, टोटल टॉर्क कहां से कहां तक होगा देखिए, फ्रॉम हेयर टू हेयर,
तो हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे R2 to R1. So this will be the total torque value. Now for designing any bearing and clutches, we have to assume two assumptions. First is the considering uniform pressure theory, and second is the uniform wear theory. Uniform pressure theory is applicable for new clutches and uniform wear theory is applicable for old clutches. तो हम वन बाय वन ये दोनों थ्योरी अप्लाई करेंगे उसमें. तो देखिए फर्स्ट हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी लगाएंगे. यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी दैट मीन्स प्रेशर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सेक्शन. तो P की वैल्यू क्या होगी? लोड अपॉन एरिया. एरिया कितना होगा? पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर. तो ये प्रेशर की वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे? जब हम ये एक्सप्रेशन पुट कर रहे हैं टोटल टॉर्क के लिए, तो P इज इक्वल टू हम पुट करेंगे कैपिटल W बाय पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर. तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा म्यू कॉमन, P कॉमन, 2 पाई कॉमन, इसको कॉमन ले लीजिए, कांस्टेंट. लिमिट होगी R2 टू R1 R स्क्वायर dr. इसको इंटीग्रेट करेंगे x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, r की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, दैट मीन r क्यूब बाई 3. तो यहाँ से R1 R2 लिमिट लगा देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब बाई 3, और P की वैल्यू हम पुट कर देंगे W बाई पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर. तो यहाँ से हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा टॉर्क का, विच इज इक्वल टू 2/3 म्यू इंटू कैपिटल W इंटू R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब बाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर. दिस इज सिमिलर टू द पिवोट bearing केस also. Now by considering the uniform wear theory. Uniform wear theory, that means wear is uniform. That means P into R should be constant. P into R should be constant. That means pressure is inversely proportional to R. P is equal to C by R. ठीक है. तो जब P is equal to C by R होगा तो जो हमारा डेल्टा W जो एक्सप्रेशन था वहां पे P into डेल्टा W, देखिए डेल्टा W का एक्सप्रेशन हमारा क्या आया था? P इंटू 2 पाई आर डी आर. यहाँ पे P की वैल्यू हम पुट कर देंगे C बाई R. तो हमारा एक्सप्रेशन पहले हम निकालेंगे वैल्यू डेल्टा W की 2 पाई C डी आर. अब 2 पाई C डी आर, तो हम इसको डेल्टा W मतलब टोटल लोड हम पहले देखेंगे कितना लग रहा है. तो अगेन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे R2 टू R1, तो हमारा टोटल लोड आ जाएगा 2 पाई C R1 माइनस R2. अब हम वैल्यू पुट कर देंगे C की, विच इज इक्वल टू, C की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं. तो C इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल W बाई 2 पाई R1 माइनस R2. अब यहाँ से C की वैल्यू आ गई, तो हम अब टोटल टॉर्क के एक्सप्रेशन में जो हमने यहाँ पे निकाला है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल टॉर्क. यहाँ पे हम C बाई R पुट करेंगे. तो C बाई R जब पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? देखिए यहाँ पे C बाई R पुट कर दिया, म्यू P 2 पाई R स्क्वायर डी आर. तो C बाई R पुट कर दिया, तो R से R कैंसिल आउट, 2 पाई C R इंटू डी आर. तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया. अब C की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, C इज इक्वल टू W बाई R1 माइनस R2 यहाँ से. तो यहाँ से जब पुट करोगे तो 2 भी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका? अंदर बचेगा सिर्फ R डी आर. तो इसमें लिमिट लगा देंगे R2 टू R1, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी म्यू W बाय R1 minus R2 into R1 square minus R2 square by 2, because R dr x dx x की पावर 1 plus 1 upon 1 plus 1 x square by 2. तो यहाँ पे x की जगह R पुट करके R1 square minus R2 square by 2. तो ये आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन टॉर्क का इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वियर थ्योरी फॉर द सिंगल प्लेट क्लच. तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका टॉर्क का, म्यू डब्ल्यू आर, वेयर आर इज द effective radius. The value of the effective radius is equal to R1 plus R2 by 2. Equation 3 and 6 are for one pair of friction surface. In a single plate clutch, there are two pairs of friction surface. So in case of uniform pressure, the equation for turning torque will be 2 into. अब हमने अभी वन साइडेड के लिए निकाला है,
लेकिन हमें दो साइडेड, दोनों साइड पे फ्रिक्शन थी तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2/3 म्यू डब्ल्यू R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब बाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और सेम हम इस एक्सप्रेशन में भी 2 म्यू डब्ल्यू आर कर देंगे। If clutch is multi-plate clutch having n pairs of friction surface, then the equation for the turning torque in case of a uniform pressure will be n, जितनी सरफेस होंगी 2/3 म्यू डब्ल्यू, सिर्फ n से मल्टीप्लाई हो जाएगा जितनी भी फ्रिक्शन सरफेसेस एक्टिव होंगी। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन। द वैल्यू ऑफ n क्या है? नंबर ऑफ पेयर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस फॉर मल्टीप्लेट क्लच विल बी कैलकुलेटेड एज बिलो। अब हमारी ड्राइविंग पे अलग होती है, ड्राइवर पे अलग होती है। तो ड्राइविंग पे अगर N1 है, ड्राइवर पे N2 है, तो N इज इक्वल टू होगा N1 प्लस N2 माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ N फॉर द मल्टीप्लेट क्लचेस। We have already discussed this. So what is the value of the power? Power will be equal to 2 pi nt by 60. So this is the expression for the power. This is the arrangement of the single plate clutch, flywheel, clutch plate. This is friction surface, this is friction surface, this is splined hub, this is diaphragm spring, and this is mounted on this complete shaft. Now multi-plate clutch, as the name suggests, here we will use the number of clutch plates. A multi-plate clutch is an extension of single plate clutch where the number of friction surface is increased. Due to this increase in number of friction surface, the area which transmit torque is increased, which in turn increases the capacity of the clutch to transmit torque. That means अभी हम सिंगल प्लेट क्लच की बात कर रहे थे। सिंगल प्लेट क्लच के केस में क्या हो रहा था कि जितना टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा था मल्टीप्लेट क्लच में उससे ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन सरफेस होंगी उतना ज्यादा से ज्यादा आपका टॉर्क ट्रांसमिट होगा। तो इसमें हमारी क्लच प्लेट ज्यादा है, मतलब ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिटेड होगा। तो हैवी टॉर्क ट्रांसमिशन में हम मल्टीप्लेट क्लच यूज करते हैं, जहां पे हमें स्पेस की अवेलेबिलिटी कम होती है। दिस टाइप अरेंजमेंट वी विल सी इन मल्टीप्लेट क्लचेस। वर्किंग इज सेम as in single plate clutch. Engagement position is also same as we have already discussed in the single plate clutch. That means engagement of the clutch during the engaged state of the clutch when the clutch pedal is not pressed, and disengagement of the clutch when the clutch pedal is pressed. These two conditions are always same. Now we will solve one numerical problem which is based on the single plate clutch. The outer and inner diameter of the single plate clutch are 300 mm and 200 mm respectively. The both sides of the clutch are effect. The maximum pressure intensity should not be more than 0.1 Newton per mm square. If the coefficient of friction is 0.3, find the power transmitted at 2500 rpm. क्या क्या गिवन है हमें? आउटर रेडियस दिया है r1 की वैल्यू, basically it's a diameter, so we can find out the value of the radius, which is d by 2, so it is equal to 150 mm, and inner 200 by 2, that means 100 mm. So maximum pressure intensity 0.1 Newton per mm square. Coefficient of friction mu की वैल्यू भी दी है, P is equal to होता है 2 pi nt by 60. Now we will apply the uniform wear theory. That means wear should be uniform. So we know that the wear out at the inner surface will be less than the outer surface. That means wear is equal to होता है P into R is constant. तो P is inversely proportional to R. That means ज़्यादा रेडियस होगी तो हमारी प्रेशर क्या होगा? कम होगा। कम रेडियस होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर दिया हुआ है, तो वो कहाँ पे होगा? इनर सरफेस में होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो पी आर इज कांस्टेंट, दैट मीन्स सी।
तो P की वैल्यू हमें 0.1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर दी है। R इनर रेडियस में हमारा मैक्सिमम प्रेशर होगा, तो R की वैल्यू हम 100 पुट करेंगे विच इज इक्वल टू कैपिटल C। तो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी 10। अब अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म wear theory, we already derived an expression of capital W which is equal to 2 pi C into R1 minus R2। 2 pi C की वैल्यू हमारी आई है 10, पुट कर देंगे। R1 R2 आउटर इनर रेडियस की वैल्यू हमें पता है 150 माइनस 100, तो यहाँ से हमारी कैपिटल W एक्सियल लोड की वैल्यू आ जाएगी 3140 न्यूटन। अब टर्निंग मोमेंट या टर्निंग टॉर्क T इज इक्वल टू होता है N इंटू म्यू इंटू कैपिटल W इंटू R1 प्लस R2 बाई 2। N की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2, बिकॉज बोथ साइड्स आर इफेक्टिव। न्यूमेरिकल में पहले ही लिखा हुआ है कि बोथ साइड आपकी इफेक्टिव है, तो यहाँ पे N इज इक्वल टू हम 2 पुट करेंगे तो म्यू की वैल्यू 0.3 है, कैपिटल W की वैल्यू 3140 हम पुट कर देंगे। R1 R2 हमें पता है, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द टोटल टॉर्क विच इज इक्वल टू 235500 न्यूटन इंटू mm। जब मीटर में चेंज करेंगे 235.5 न्यूटन mm ट्रांसमिटेड टॉर्क। नाउ पावर इज इक्वल टू, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 2 pi nt by 60, put the value of T in this expression, sorry here we will put value of T which is equal to 235.5, so we will get the value of total power which is equal to 61.6225 kilowatt. In the next lecture we will talk about the cone clutch, and we will also solve few more numericals. Thank you.